Hello children, good morning. Hope you all are fine. So in this video we are going to learn chapter 5 of geography, minerals and energy resources. We have discussed the previous chapter up to 4 in our previous video. You can go and check in description as well as you can check in our video links. So let's start today's topic, chapter 5 of geography. You all know what are minerals and their importance to human life, and also about energy and different types of energy sources which are helpful in our daily life. So first of all we will discuss its objective, why we need to study this chapter. So you all know minerals are very important part of our life. Without them we cannot survive even a single pin, and uh, long towering building is made up of minerals. So we will discuss different types of conventional and non-conventional energy resources and their utilization. Also we will study the judicious use and conservation. So firstly we will discuss with why minerals are important to us. In from this part, one very important question from board exam point of view is that minerals are indispensable part of our life. So it is the same meaning of this, indispensable. Okay, indispensable part of our life. Why it is indispensable part of our life? Indispensable means which we cannot replace with any other thing. Okay, so minerals are indispensable part of our life. This is the first line, and we have to justify this. Almost everything we use in our daily life, so you can write number 1 point, almost everything we use in our daily life, from a tiny pin to a towering building, is made up of minerals. And second thing, we have to write the importance and uses of this. So second thing, railway lines and the tarmac, yeah, paving of road, that is also done by machinery which is made up of minerals. And the things we use like stone and coal, tar, that is also a mineral. Then car, buses and many all other vehicles and transport system, they are using minerals. And last but not the least, even the food we are eating, that contain different types of minerals which helps in digestion and proper body functioning. And for housing, decoration, festivities, religious and ceremonial rites, we need minerals. So these are the importance of minerals that you have to learn in your tips. Many geographer has given different definition for the minerals. One of them is minerals are having homogeneous in nature, and they are naturally occurring substance and containing definite shapes and structure. So this is the complete definition of mineral. Next, occurrence of minerals. Where does minerals found? So कहाँ हमें मिनरल मिलते हैं? So it's found with the igneous and metamorphic rocks, sedimentary rocks, and even after evaporation. जैसे आप salt जो हमें मिलता है, that is also mineral that we get from the evaporation process. Then residual mass of weathered rocks या weathered material, alluvial deposits या placer deposit हम उसको कहते हैं, another method जिससे हमें minerals मिलते हैं. Now next, classification of minerals. Minerals can be classified into two broad categories. Number one, metallic, another is non-metallic. Metallic, as the name indicate, contain metals in them. ठीक है, तो जितने भी मेटल से हमें मिलते हैं, दे आर मेटेलिक मिनरल. एंड नॉन मेटेलिक, जो हमें मिनरल से नहीं मिलते. सो मेटेलिक भी आपकी फर्दर टू टाइप्स की होती है, फेरस एंड नॉन फेरस. मेटेलिक में भी हमारे पास नेक्स्ट टू कैटेगरीज आ जाती है, फेरस एंड नॉन फेरस. सो जो फेरस है, दे कंटेन Fe, एज अ नेम इंडिकेट Fe आपको पता है किसका सिंबल है, आयरन का. सो इट कंटेन आयरन इन इट. ठीक है, लार्ज अमाउंट में इसमें आयरन होती है. जो नॉन मेटेलिक है उनमें आयरन नहीं होती है. ठीक है, आयरन इज नॉट फाउंड इन नॉन मेटेलिक मिनरल्स. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया नॉन मेटेलिक एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, दिस टाइप ऑफ मिनरल्स कंसीडर्ड.
नाउ नेक्स्ट आयरन ओर, जो कि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस मिनरल का पार्ट है आयरन ओर। सो आयरन ओर जो है आपका कहाँ कहाँ, इसके टू टाइप्स होते हैं, एक मैग्नेटाइट, अनदर इज हेमेटाइट। जो मैग्नेटाइट है इट इज़ द फाइनेस्ट आयरन ओर, इसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी आपकी आयरन की होती है, अबाउट 70%, ठीक है। एंड इट हैज़ एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, तो इसकी मैग्नेटिक क्वालिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। एंड स्पेशली इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। तो ये तीन चीज़ें आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ आयरन, एंड सेकेंड थिंग एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटी, एंड थर्ड थिंग इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। सो नेक्स्ट ओर इज हेमेटाइट ओर। ये आपका चीप होता है, इसमें आयरन जो कंटेंट है दैट इज़ 50 to 60% आयरन इसमें यूज होता है। एंड it's due to its less quantity, it is used in many industrial purposes. The distribution of iron ore, जो आयरन ओर है, और आपको पता होगा और क्या होती है, और इज अ प्लेस वेयर वी गेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल, रॉ मिनरल जहाँ से मिलती है उसको हम बोल देते हैं ओर। अगर लोकल लैंग्वेज में बताएं तो खाने, जो खाने होती है बड़ी बड़ी लोहे की, उसको बोल देते हैं ओर, ठीक है। So it is found in two ways, hematite and magnetite, I told you already. फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, कि कहाँ प्रेजेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, इट्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ठीक है, उड़ीसा एंड झारखंड बेल्ट में है, दुर्ग, बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बेलरी चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर एंड तुमकुर बेल्ट, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र एंड गोवा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी जो मेनली और जो है मिनरल्स हैं वो जनरली आपके डेक्कन रीजन में पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडिया के नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सारी दी है, मयूरभंज, ठीक है, ये मेन आयरन ओर साइट्स हैं। आयरन मयूरभंज आपकी पूछी जाती है, दुर्ग एंड ये बेलाडेला एंड बेलरी, कुदेरमुख, ये मेन इंपॉर्टेंट है आपकी, जो आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाती है। तो ये आपने लोकेट करनी है अपने मैप में, इंडियाज मैप यू कैन परचेज एंड यू कैन fill on that, it is your assignment. Next, distribution of iron ore, this we have already discussed. Now कॉपर, इसके बाद अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर हमारे पास जैसे बालाघाट मध्य प्रदेश में, ठीक है, सिंगबम एंड खेतरी माइन ये आपकी राजस्थान में है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। बॉक्साइट, इसी तरह से आपके पास बॉक्साइट की आगे कॉपर के बाद, ठीक है, उड़ीसा में है इसकी, मध्य प्रदेश में कहाँ है, अमरकंटक काटनी, ठीक है, मैकाल हिल्स छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में लोकेटेड है। तो ये हमारे पास जनरली पूछी जाती है पेपर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिका, तो इसमें भी आपके पास राजस्थान में आपके पास सबसे ज़्यादा मिका की माइंस हैं। देन उसके बाद हजारीबाग है आपका, गया इन बिहार, ठीक है, ये आपसे जनरली पूछी जाएंगी। नेलोर इन आंध्र प्रदेश। टाइप्स ऑफ माइनिंग, अब हमारे पास माइनिंग कितने टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट माइंस थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब इम्पोर्टेंट माइनिंग टाइप्स, तो इसमें एक ओपन पिट होती है और एक रैट पिट होती है। तो अभी देखते हैं हम इसमें। नंबर 1 क्वेरी, एक तो आपकी होगी क्वेरी। क्वेरी इज़ द सेम एज एन ओपन पिट। ओपन पिट में आपके पास यहाँ दी हुई है किस तरह से ये होती है, ठीक है, ओपन पिट दिखा रखी है आपको, सो यू कैन सी दिस ओपन पिट। ओपन पिट जैसे ओपनली इसको हम अर्थ के सरफेस पे ही माइनिंग की जाती है इसमें। सो ओपन पिट यू कैन सी हियर, एंड क्वेरी, ये भी ओपन पिट की तरह ये क्वेरी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ऊपर से की जाती है माइनिंग, उसको बोलते हैं ओपन पिट। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास अंडरग्राउंड माइन विद शाफ्ट, तो इसको हम बोलते हैं रेट होल माइनिंग, ठीक है। इसमें रेट होल माइनिंग, एक आपकी वर्टिकल लगती है, फिर एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये दो तरह से यहाँ पे दिखाई हुई है, शाफ्ट है, डीप होल किए जाते हैं अंदर अर्थ के सरफेस के लिए डिग करने के लिए। जैसे आपके प्रीशियस मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, इन सब की माइनिंग जो है इस तरह से की जाती है। मेघालय, देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट एक्सेट्रा। कोल माइनिंग इन जोवाई
and Cherrapunji is done by family members in the form of long narrow tunnel known as rat hole mining. इसमें long narrow tunnel बनाई जाती है और inside the earth surface. So you are clear with the difference rat hole mining and open pit mining. ठीक है, open pit में आपके पास openly on the surface of earth पे की जाती है और जो ये है इसमें inside the earth deep hole किए जाते हैं. नाउ ये तो थी माइनिंग की बात, इनका यूज़ क्या क्या आपको पता है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है. इसके अलावा देयर आर मैनी इम्पैक्ट्स और कंसिक्वेंसेस, जो बैड कंसिक्वेंसेस है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वो सारा इसमें डिस्कस किया है. सो कंसिक्वेंसेस आपको पेपर में पूछे जाएंगे. इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग ऑन हेल्थ ऑफ द माइनर्स एंड द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इससे. सो पहली बात, जो डस्ट होती है इसके अराउंड, जब भी आपने माइनिंग करते हुए देखा होगा तो वहाँ पे डस्ट क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो इसमें पहली लाइन लिखी है नॉक्शियस फ्यूम. नॉक्शियस फ्यूम मीन्स पॉइजनस स्मोक. ठीक है, पॉइजनस स्मोक. तो वो जो हम इनहेल करते हैं माइनर्स, तो उनको बहुत सारी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है. पल्मोनरी मीन्स रेस्पिरेटरी डिजीज़ लाइक लंग्स कैंसर and infection in respiratory tract, this type of. And second thing, risk of collapsing mine roof, inundation and fire in coal mines are a constant threat to miners. अब जैसे कि अगर स्लाइडिंग हो जाती है इनसाइड द माइनिंग साइट, जैसे उन्होंने शाफ्ट में अंदर जाते हैं वहाँ पे कोलैप्स हो जाती है तो वो उसके अंदर दब भी सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, जो कोल माइन की साइट होती है जहाँ पे कोयले की खानें होती है वहाँ पे आग लगने का भी खतरा रहता है. देन द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू माइनिंग. जो वाटर के सोर्सेज है वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है नॉक्शियस फ्यूम बनता है. देन इट मिक्स विद द वाटर एंड कॉज वेरियस कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रेट बन जाते हैं, सल्फेट बन जाते हैं, जिससे वाटर जो है एसिडिक हो जाता है नेचर में. Then dumping of waste and slurry leads to the land degradation, soil की fertility जो decrease हो जाती है, and increase in stream and river pollution. और इससे क्या होता है कि river pollution या nearby जो भी water bodies है that get contaminated. The next, stricter safety regulation and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. तो ये important question है, killer industry, which industry is known as killer industry. तो ये आता है आपको mining industry and why it is known as killer industry. So ये जो points हमने ऊपर discuss किए हैं that same you have to write in this. Okay, and how can we control this? तो आप suggestion में लिख सकते हैं we can control it by strict law implementation. ठीक है. Second thing, now why conservation of minerals is the need of the hour. Conservation of mineral, अभी हमने अब मिनरल्स को बचा के क्यों रखना है, हाउ कैन वी कंजर्व देम, क्यों बचाने की ज़रूरत है आज के टाइम में. सो वो आपने इसमें मेंशन करना है. दैट इज़ योर टास्क. जब मिनरल्स नहीं होंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस. इसके बाद है हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. योर टास्क इज टू write in comments what is the need of conservation of minerals nowadays. So thanks for watching.